So this is the lecture number 4. Here we will discuss about the numericals. Okay. So let us take the first numerical. This one. In this numerical, what it is written like. See, in a condenser, the vacuum of 71 centimeter of Hg is maintained with the barometric reading 76 centimeter in Hg. This is a very simple question. Temperature in the condenser is 35 degrees centigrade, while hot well is at a temperature of 30 degrees centigrade. What is hot well? Hot well is the place where the condensate is collected. Clear? तो आप जो HF की वैल्यू निकालेंगे वो HF की वैल्यू 30 डिग्री सेंटीग्रेड की बेस पे कैलकुलेशन होगा. The cooling water is circulated at the rate of 800 kilogram per minute and condensate is available at 25 kilogram per minute. Clear? अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि दिस इज द मास ऑफ वाटर एंड दिस इज द मास ऑफ कंडेंसेट. बोथ आर डिफरेंट. The temperature of the cooling water at inlet and outlet is 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड. द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर, जो कूलिंग वाटर है, आपने कंडेंसर में आपको मैंने जब क्लासिफिकेशन बताया था तो उसमें बताया था कि आपका जो टाइप ऑफ कंडेंसर है उसमें ये वाटर ट्यूब टाइप कंडेंसर है जिसमें इनलेट में 15 डिग्री सेंटीग्रेड ये जाता है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वापस आता है. डिटरमाइन द मास ऑफ एयर in kilogram per meter cube of condenser volume, dryness fraction of the steam entering condenser and vacuum efficiency. Take mercury density as a point this and the gravitational force is 9.81. See how to solve this thing. Let us take this one. See, मैंने जो आपको थ्योरी में बताया था कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर कंडेंसर के अंदर कितना होता है, दिस इज द बिकॉज इट्स अ नेगेटिव प्रेशर, सो इट्स अ बैरोमेट्रिक हेड इन सेंटीमीटर ऑफ Hg माइनस वैक्यूम प्रेशर इन सेंटीमीटर ऑफ Hg. Now if you want to calculate this thing, so what is the absolute pressure in the condenser? This is the PT, and what is the barometric pressure? It's 76 centimeter in Hg, 76 centimeter Hg, and this is the 71 centimeter of Hg vacuum maintained है. So this one is 76 minus 71. Clear? So this one is value of H. How to calculate over here? This is the one of the way. मैं दूसरे प्रॉब्लम में आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे और दूसरी तरह से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपको मरकरी की डेंसिटी आपको याद नहीं है तो आप कैसे दूसरी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा. अभी आप यहाँ पर समझिए ये यहाँ पर मैंने कैसे कैलकुलेट किया. दिस इज द सिंपल फार्मूला, that is pressure is equal to the pressure head. Pressure head is equal to the density multiplied by the gravitational force multiplied by the barometric का जो difference है H. Clear? So what is H? H is equal to 76 minus 71. Clear? So this value is 5. So ये MKS यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो MKS में जब आप कन्वर्ट करने जाएंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा. So this is 76 minus 71. Now here we require the density. हर एक क्वेश्चन में आपको मरकरी की डेंसिटी नहीं दी रहेगी, तो दूसरे भी तरीके से हम एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा. सो सिंपल, दिस वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेंसिटी. सो दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कन्वर्टेड इनटू अ मीटर क्यूब. सो इट इज कन्वर्टेड इनटू अ मीटर क्यूब एंड मल्टीप्लाइड बाय G. So this value is MKS in Pascal. This one is 6.67 kilopascal. Clear? So here this is the way by which you calculate the absolute pressure. Now the second one is, what is the need of this calculation of absolute pressure? Because absolute pressure in the condenser is equal to the summation of two gases, that is the partial pressure of the steam plus partial pressure of air. So if you have the value of partial pressure of steam and absolute pressure in the condenser, so easily you calculate the partial pressure of air also. So partial pressure steam का कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये हर एक क्वेश्चन में आप समझ लीजिए. देखिए जो कंडेंसर का आपको प्रेशर दिया, टेम्परेचर दिया रहता है, कंडेंसर का टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे. तो आपको मैंने जो आपको प्रिंसिपल बताया था उस प्रिंसिपल में आपको ये बताया था कि आप डाल्टन का जो प्रिंसिपल मैंने बताया था उसमें ये बताया था कि जितना भी एक चैम्बर के अंदर
हर एक गैस का टेम्परेचर सेम रहेगा। दैट मीन्स 35 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कंडेंसर का टेम्परेचर है तो पूरे कंडेंसर में जितनी भी स्टीम है और जितनी भी एयर है उन सब का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। सो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टीम टेबल पर जाके हम सेचुरेशन प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम इन द कंडेंसर इज इक्वल टू द सेचुरेशन प्रेशर ऑफ स्टीम करस्पॉन्डिंग टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टीम टेबल से आप इसको देख सकते हैं। स्टीम टेबल से जब आप इसको देखेंगे तो पार्शियल प्रेशर आपको स्टीम का कितना मिलेगा, 5.62 किलो पास्कल। अब ये क्वेश्चन है कि इसको कहाँ देखें, सुपर हीट में देखें, क्वाइट ऑब्वियस कि आप इसको सेचुरेशन प्रेशर देख रहे हैं और उसका देख रहे हैं, स्टीम का देख रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो क्वाइट ऑब्वियस कि आप 35 डिग्री सेंटीग्रेड अगेंस्ट में सुपर हीट में नहीं जा सकते, क्योंकि सुपर हीट में आपको दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर ही दिया रहता है। इसका मतलब है कि आपको सेचुरेशन टेबल पर ही आपको देखना है, यानी लिक्विड टेबल पर ही आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो दिस वन इज 5.62 किलो पास्कल, ये आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब इसके आगे आते हैं और देखते हैं कि क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। तो फर्दर इसके बाद नेक्स्ट वन इज कि पार्शियल प्रेशर आप एयर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। सो क्वाइट ऑब्वियस, सिंपल मैथमेटिक्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कह सकते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर कह सकते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम। सो दिस वैल्यू इज 1.04 किलो पास्कल। Why it is needed? Because we need to calculate the mass of air. Clear? So ऑलरेडी assumption में मैंने आपको बताया था कि एयर को आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो अगर आप एयर को आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू, दैट इज PV इज इक्वल टू MRT। सो मास ऑफ एयर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई द टोटल वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा, MART तब यूज किया जाता है जब आप टोटल वॉल्यूम यूज कर रहे होंगे। P इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू RT कब यूज करते हैं, इसमें जो V है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको ये गैस लॉस जब आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे तो वहां समझ में आया होगा। सो दिस वन इज द मास ऑफ एयर इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब क्यों मैं बोल रहा हूँ, पर मीटर क्यूब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पर आपको टोटल वॉल्यूम कंसीडर किया जा रहा है। तो पार्शियल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम डिवाइडेड बाई R इंटू T। इज दैट क्लियर? आर आपको ध्यान रखना है, एयर का 287 होता है, ठीक है, 287 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन होता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि जब भी आप आइडियल गैस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे वो सारी वैल्यूज आपकी MKS यूनिट में होनी चाहिए। सो दिस वन इज किलो पास्कल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज 1.04 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई द वॉल्यूम। क्लियर? तो वॉल्यूम आपको कितना कंसीडर करना है, पर मीटर क्यूब आप कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है आपसे। देखिए यहाँ पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब के लिए कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है, इसलिए आप जो वॉल्यूम ऑफ कंडेंसर कैलकुलेट कर रहे हैं दिस इज द 1 डिवाइडेड बाई दिस वन इज T, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 287। क्लियर? तो 287 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन होता है, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट करने पर जो मास ऑफ एयर आ रहा है दिस वन इज 0.012 kilogram per meter cube. Clear? This much amount of air is available per meter cube. Is that clear? Okay. Now the second thing is, पहला चीज से आपका कैलकुलेट हो गया, determine the mass of air in kilogram per meter cube of the condenser volume. ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है ऑफ स्टीम। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल करना है, हीट गिवन बाय द वाटर इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द स्टीम। सिंपल, क्लियर? हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेक। तो हीट गिवन बाय द वाटर कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर या रेट ऑफ मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय जो कंडेंसर के अंदर का एंट्री और एग्जिट का टेम्परेचर, दिस इज 25 माइनस 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम मल्टीप्लाइड बाय HFG। HFG की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? HFG की वैल्यू आप प्योर सब्सटेंस में देख चुके हैं, ये कैसे कैलकुलेट की जाएगी। सी दिस वन इज HFG। तो HFG इज सिंपल, this one is Hg minus this one is HF. Clear? Hg minus HF. So Hg वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? Hg वैल्यू आप 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके स्टीम टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। HF वैल्यू भी वहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट द थिंग इज यहाँ पर हॉट वेल का टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो स्पेसिफिकली अलग दिया हुआ है। सो दिस वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज 4.18 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्री सेंटीग्रेड।
क्लियर, ये बात समझ में आ गया। तो इसको कैलकुलेट करना है, चलिए आगे इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। सो दिस वन इज द मास ऑफ वाटर, दिस वन इज 800 किलोग्राम पर मिनट multiplied by 4.18 multiplied by 25 minus 15 is equal to 25 HS minus 4.18 into 30 degree centigrade. So HS is equal to HG. तो HS is equal to HG ये कहाँ से देखेंगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभी HS का आपको मैंने HG बोला, HG इसलिए बोला क्योंकि मैंने आपको एक HFG का डिफरेंस बताया। अब जो HG है वो आपका सी दिस वैल्यू इज HG, क्लियर। सो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, HG की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, जैसे आपने इसके पहले वेपर पावर साइकिल में देखा था, HF प्लस X HFG, क्लियर। ये वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो आपको जब HG की वैल्यू मिल जाएगी तो क्वाइट ऑब्वियस कि आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर सीधे भी तो देख सकते हैं, सीधे आप देख सकते हैं, लेकिन जो स्टीम टेबल में आप HG की सीधे वैल्यू देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप सैचुरेटेड की वैल्यू देख रहे हैं, यानी X की वैल्यू यानी ड्राई की वैल्यू आप देख रहे हैं जब X की वैल्यू 1 होती है। तो अभी हमको यहाँ से इसने ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करने को बोला है, दैट मीन्स इट दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1। सो कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा फर्दर देखिए। नाउ HS की वैल्यू वहां से कैलकुलेट कर लिया, दिस इज द 1463 किलो जूल पर किलोग्राम। सो HF 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लस X HFG, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर HF की वैल्यू और HFG की वैल्यू आपको स्टीम टेबल से मिल जाएगी। HS की वैल्यू आपको पता है तो ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको निकल के आएगा, दिस इज द 0.5442। इज दैट क्लियर? ओके। वैक्यूम इफिशियंसी, तो वैक्यूम इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको वैक्यूम इफिशियंसी का फार्मूला मैंने आपको बताया था, दैट इज द जो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर आया है यानी एक्चुअल प्रेशर है, दिस वन इज 76 माइनस 5 इंटू द रो जी एच, जो भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था वो वैल्यू है। दिस वन इज सी वैक्यूम इफिशियंसी आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। सो वैक्यूम इफिशियंसी आप यहाँ पर जो फार्मूला आपको दिया गया था वो फार्मूले से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या डिफरेंस आया है, किस तरह से कैलकुलेट किया गया है। अगर आप वैक्यूम इफिशियंसी को देखें तो जहाँ तक मुझे याद है वैक्यूम इफिशियंसी का जो मैंने फार्मूला आपको डिराइव कराया था वो ये था, दैट इज एक्चुअल वैक्यूम डिवाइडेड बाय द थ्योरेटिकल वैक्यूम। तो एक्चुअल और थ्योरेटिकल वैक्यूम में डिफरेंस क्या है, एक्चुअल और थ्योरेटिकल वैल्यू में डिफरेंस क्या था। एक्चुअल वैक्यूम जो आपका था कंडेंसर का, उसमें आपने क्या किया था, बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस आपका एब्सोल्यूट प्रेशर आपने किया था। एब्सोल्यूट प्रेशर कह सकते हैं, तो दिस इज द, मैं कोशिश करता हूँ इस चीज़ को लिखने की, ये चीज़ आपने यहाँ पर की थी, तो वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको दिखाई हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि क्या था वहाँ पर, एक्चुअल अपान आइडियल कह सकते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है, दिस वन इज बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस दैट इज जो आपने एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय जो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है, डिवाइडेड बाय दिस वन इज कि आप आइडियली ये मानते हैं कि कोई भी एयर अवेलेबल नहीं होगी, माइनस दिस वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम। ये क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, ए बी लिख दीजिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप एयर से। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज अ समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आया? तो दिस इज द एक्चुअल प्रेशर इन द कंडेंसर डिवाइडेड बाय द आइडियल प्रेशर इन द कंडेंसर। सो आइडियली कंडीशन में पीए की वैल्यू अगर आप 0 कर दीजिए तो आप देखेंगे कि 100% वैक्यूम एफिशिएंसी आएगी। तो यही चीज़ यहाँ पर की है, दैट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक, एब्सोल्यूट प्रेशर जो मैंने कैलकुलेट किया है, माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर को मैंने mm ऑफ HG में कन्वर्ट किया है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो आप इसको मैं दूसरा तरीका जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आप उससे पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम, पार्शियल प्रेशर एयर किलो पास्कल में सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं और इनकी वैल्यू यहाँ पर रख के वैल्यू एफिशिएंसी कैलकुलेट की जा सकती है। इज दैट क्लियर? तो आसान है क्योंकि फार्मूला बेस ही है। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड क्वेश्चन की। नाउ सी द सेकेंड प्रॉब्लम, what it is, during the trial on a condenser it is seen to have a vacuum of 67
centimeter of Hg, while the barometric reading is 75 centimeter of Hg. See, the thing is कि आप यहाँ पर 67 देख रहे हैं और जो बैरोमेट्रिक रीडिंग है वो 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg है. दैट मीन्स 76 स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो करेक्टेड वैक्यूम यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. द मीन condenser temperature is 40 degree centigrade and the temperature of hot well is 35 degree centigrade. Circulating water flow is 1000 kilogram per minute. For giving condensate rate is 50 kilogram per minute. Temperature of cooling water at inlet and exit is 10 degree centigrade and 25 degree centigrade. Determine the vacuum corrected. ये आपके लिए नया टर्म है. क्यों करेक्टेड वैक्यूम है? क्योंकि आप ये देखिए कि 76 नहीं है यहाँ पर, इसलिए इसको करेक्टेड वैक्यूम निकालना पड़ेगा. करेक्टेड वैक्यूम का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ. The vacuum corrected to a standard barometric reading is 76 centimeter. The vacuum efficiency आपको कैलकुलेट करना है, अंडर कूलिंग निकालना है और कंडेंसर efficiency निकालनी है. The steam state of steam entering condenser निकालना है. Mass of air per meter cube of condenser volume निकालना है and the mass of air per kilogram of uncondensed steam निकालना है. So काफ़ी कुछ इसमें कैलकुलेट करना है. एक क्वेश्चन से इसमें काफ़ी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. करेक्टेड वैक्यूम जो आपको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बताया था वो ये कि जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होती है, 760 mm ऑफ Hg होती है. ठीक, तो इसको उसके अकॉर्डिंग आप 76 माइनस जो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर आपको कहा गया है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द कंडेंसर इन सेंटीमीटर ऑफ Hg. तो करेक्टेड वैक्यूम पहले कैलकुलेट करते हैं. व्हाट इज द करेक्टेड वैक्यूम? सो दिस इज द 76 माइनस. अब आप देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ. कंडेंसर के अंदर एब्सोल्यूट प्रेशर P एब्सोल्यूट ABS P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, आप कैसे कैलकुलेट करते थे? आप कैलकुलेट करते थे कि जो बैरोमीटर की रीडिंग है, बैरोमीटर की रीडिंग यहाँ पर कितनी दी है, बैरोमीटर रीडिंग कितनी है 75, क्लियर, माइनस जो आपका वैक्यूम है, वैक्यूम कितना है 67. सो दिस वन इज द 67. ये वैल्यू आपकी एब्सोल्यूट प्रेशर होती थी. तो ये करेक्टेड वैक्यूम. देखिए अगर ये 76 होता तो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द करेक्टेड वैक्यूम. सो हियर द करेक्टेड वैक्यूम इज 76, दिस वन, माइनस absolute pressure. So absolute pressure is 75 minus 67. So this is the 68 centimeter of Hg is the corrected vacuum. Is that clear? So vacuum corrected ये आपका यहाँ से कैलकुलेट हो गया. नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि पहले आप कैलकुलेट कर रहे थे कि एब्सोल्यूट प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है. तो अगर आपको mm ऑफ Hg पता है तो आप उसमें डेंसिटी ऑफ मरकरी का मल्टीप्लाई करते थे और G का मल्टीप्लाई करके निकालते थे. लेकिन इट्स अ वेरी आपको बार बार क्या याद करना पड़ेगा, मरकरी का डेंसिटी है. सो आप इसको आसान से एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. देखिए कैसे. This is the basic thing. 76 centimeter of Hg is equal to 1 atmosphere is equal to 1.035 bar is equal to 1.035 into 10 to the power 5 bar. Is that clear? ये एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. तो अब इसको कन्वर्जन कैसे करेंगे? देखिए अब कन्वर्जन करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा. दिस वन इज आई थिंक दिस इज द 8 सेंटीमीटर. आई एम सो सॉरी. आप कैलकुलेट करके एक बार देखिए इसको. मुझे लग रहा है थोड़ा सा, मैं एक बार कैलकुलेट करता हूँ इसको. जस्ट अ मिनट. दिस वन इज 76 minus 75 plus 67. Okay, so this is the 68. Clear? This is the 68 centimeter of Hg. ये करेक्टेड वैक्यूम है आपका. अच्छा, दूसरा जो आपका वैक्यूम एब्सोल्यूट प्रेशर है वो कितना है? एब्सोल्यूट प्रेशर है 75 माइनस 67. दिस वन इज 8. क्लियर? तो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर जो है, एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है? दिस वन 75 minus this one, so this is the 8 centimeter of Hg. ठीक. अब 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg को आपको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है. अब वो कन्वर्जन मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ. देखिए कैसे. देखिए 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg is equal to 1.035 into 10 to the power 5 bar. That means 8 centimeter of Hg is equal to 1.035 into 10 to the power 5 divided by 76 multiplied by 8. कर लेंगे. So this value is 10894.73 Newton per meter square or 10.8 kilopascal.
हाँ थोड़ा सा डिफरेंस आता है, क्योंकि जो मेथड अभी इसके पहले आपने यूज़ किया है वो मेथड क्या था, एब्सोल्यूट प्रेशर इन द कंडेंसर इज इक्वल टू 75 माइनस 67 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, और OGH वाला फार्मूला यूज किया। दिस इज द एच मल्टीप्लाइड बाई रो मल्टीप्लाइड बाई ई। तो ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ मरकरी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, दिस इज द 10.67 एंड दिस इज द 10.8 यार। तो फर्दर कैलकुलेशन के लिए जो कि मैंने जहाँ से लिया है जिस बुक से, तो उसमें 10.67 वैल्यू लिया है, उसी से कैलकुलेशन किया है, लेकिन बहुत डिफरेंस नहीं आएगा आपके क्वेश्चन में। तो आई सजेस्ट कि यू यूज दिस वन। ओके, सो लेट अस टेक फर्दर कैलकुलेशन। तो अभी मैं जो फाइनल वैल्यू ले रहा हूँ, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू 10.67 किलो पास्कल। इज दैट क्लियर? ओके, सो अब हमको एयर का निकालना है। तो एयर के लिए द मीन कंडेंसर टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम कितना है, 7.384। तो ये दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर विच इज अ समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम मालूम है और टोटल प्रेशर आपको मालूम है, तो आप एयर का प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू 3.286 किलो पास्कल। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गया? अच्छा, इसमें पहला पार्ट था वैक्यूम करेक्टेड, सेकेंड पार्ट था वैक्यूम इफिशियंसी आपको कैलकुलेट करना है। तो वैक्यूम इफिशियंसी एक्चुअल वैक्यूम डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैक्यूम, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो एक्चुअल वैक्यूम क्या हो जाएगा, दैट इज द बैरोमेट्रिक आपका जितना है, माइनस आपको क्या करना है यहाँ पर, एब्सोल्यूट प्रेशर। दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर डिवाइडेड बाय बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस दिस वन इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम। यही चीज़ आपको करनी थी। तो यहाँ पर आप देखिए वही चीज़ आपको रोजीएच में किया गया है, तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। 76 ये बैरोमेट्रिक आपका कितना था, 75 सेंटीमीटर आप एच जी। तो 75 सेंटीमीटर आप एच जी को आप कन्वर्ट कर लीजिए पास्कल में, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। आपको एब्सोल्यूट प्रेशर पता है, एब्सोल्यूट प्रेशर आपने निकाला है, दिस वन इज 10.67 किलो पास्कल। बैरोमेट्रिक फिर से आपने जो ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम आपको 7.384 किलो पास्कल दिया है। तो एग्जैक्टली आपको यही वैल्यू मिलेगी। क्लियर? तो इतना आपको ढेर सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट आते हैं अंडर कूलिंग। अंडर कूलिंग क्या होता है, प्योर सब्सटेंस में आपको बताया गया होगा अंडर कूलिंग का मतलब क्या होता है। देखिए अंडर कूलिंग का मतलब ये होता है कि सपोज ये टीएस डायग्राम अगर हम बनाए, यहाँ पर ये टीएस डायग्राम है और ये इसका वेपर डोम है, दिस इज द प्रेशर लाइन। Clear? This is the pressure line. See, this is the saturation temperature. This is the saturation temperature. और ये वैल्यू जहाँ से आपने ली है, say for example this one is T. So this particular ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, this one, ये वैल्यू जो आपको दिख रही, this one, this is known as the undercooling. यानी आपका जो नॉर्मल लिक्विड है उसको सैचुरेटेड लिक्विड करने में जितने टेम्परेचर का चेंज करना होता है उसको बोलते हैं अंडर कूलिंग। इज दैट क्लियर? तो देखिए स्टेट ऑफ अंडर कूलिंग कैसे कैलकुलेट किया गया। मीन टेम्परेचर आपको मालूम है कंडेंसर का कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और हॉट वेल का कितना है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स कि हॉट वेल का टेम्परेचर आपका जो हुआ है वो प्योर लिक्विड आप मान लीजिए, इट्स नॉट अ सैचुरेटेड लिक्विड। मीन कंडेंसर के समय, जिस समय कंडेंसर के अंदर है, उस समय पर हम उसको जितना भी लिक्विड भी कन्वर्ट हुआ उस लिक्विड को भी हम सैचुरेटेड लिक्विड ही एज्यूम करते हैं, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आप यहाँ पर सैचुरेटेड लिक्विड का टेम्परेचर कितना हो गया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और नॉर्मल लिक्विड का कितना हो गया, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको अंडर कूलिंग आप कंडेंसेट पता चल जाएगी, दिस इज द 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इज दैट क्लियर? अब कंडेंसर इफिशियंसी कैलकुलेट करना है, तो कंडेंसर इफिशियंसी आपको पता है, थ्योरी में मैंने बताया, एक्चुअल राइज इन कूलिंग वाटर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज। मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैचुरेटेड टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू कंडेंसर प्रेशर माइनस कूलिंग वाटर इनलेट टेम्परेचर। अभी इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं और सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कंडेंसर की अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो कंडेंसर कुछ इस तरह का एक कैप्सूल टाइप का है, और उसमें ये वाटर की पाइप जा रही है और इस तरह से ये पाइप बाहर निकल गई, ये पानी इधर गया और ये पानी इधर आया। तो आपको एक्चुअल राइज इन कूलिंग वाटर टेम्परेचर कितना है, दिस इज द TW इन, ठीक, और ये आपका TW आउट। तो दिस वन इज, अगर मैं एक्चुअल राइज इन वाटर टेम्परेचर देखो, एक्चुअल में एनर्जी का ही टर्म है, तो दिस वन इज MW मल्टीप्लाइड बाई CPW
divide multiplied by this is the TWO minus TWI. क्लियर, अगर मैं एनर्जी के टर्म में देख रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज द हीट, एक्चुअल हीट जो है, और मैक्सिमम पॉसिबल हीट क्या होगी। मैक्सिमम पॉसिबल हीट का मतलब ये होता है कि आपका जो, जैसे सपोज करिए कि मैंने ये एक उसका जो प्रोफाइल है कंडेंसर का, कंडेंसर इज लाइक अ हीट एक्सचेंजर, तो आपका जो स्टीम है वो स्टीम, चूँकि आपका जो फेज कन्वर्जन हो रहा है इसलिए स्टीम का कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, और आप ये जो वाटर है, वाटर का आपका राइज आपको दिखाना है। तो ये आपने TWI लिया है। हमेशा आपको कंडेंसर इफिशिएंसी जब भी कैलकुलेट करना हो इस तरह का प्रोफाइल बना लीजिए, बहुत आसानी से आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा। TWO, ये कौन सा टेम्परेचर है, कंडेंसर टेम्परेचर। तो कंडेंसर का टेम्परेचर कितना है, दिस इज द 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं, या आपका जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, एक्चुअली वो एग्जैक्टली टेम्परेचर आप ना लीजिए यहाँ पर, ये आप यहाँ पर जो एब्सोल्यूट प्रेशर है P एब्सोल्यूट, इस P एब्सोल्यूट के अगेंस्ट में स्टीम टेबल पर जाके इसका सेचुरेशन, दिस इज द सेचुरेशन, क्योंकि सेचुरेशन जब आप कंसीडर करेंगे तभी आपका फेज कन्वर्जन विदाउट चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर ये तो हो गया आपका जो वाटर का एक्चुअल टेम्परेचर चेंज है, और मैक्सिमम पॉसिबल कब है, ये मैक्सिमम पॉसिबल है व्हेन द फ्लूइड आर अनमिक्स्ड। तो अनमिक्स्ड में कितना हो जाएगा, MW CPW मल्टीप्लाइड बाय सेचुरेशन टेम्परेचर अगेंस्ट द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द कंडेंसर मल्टीप्लाइड बाय द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द वाटर। क्लियर, तो यही मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर डिफरेंस है। तो आपका ये जो MW CPW है ये ऊपर और नीचे से कट जाएगा, इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेट किया गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो इसके आगे इसको कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरह का आप प्रोफाइल बना लीजिएगा, कभी गलती नहीं होगी। तो आपको जो एब्सोल्यूट प्रेशर दिया हुआ है, वो एब्सोल्यूट प्रेशर इन द कंडेंसर जो दिया हुआ है, दिस इज द 40.01 किलो पास्कल। तो 40.01 किलो पास्कल आपको इंटरपोलेट करना पड़ेगा स्टीम टेबल में। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर जो आ रहा है, दिस इज द 40 सेचुरेशन टेम्परेचर 46.9 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम स्टीम टेबल। इज दैट क्लियर। और आपको वाटर का टेम्परेचर, आउटलेट का और इनलेट का टेम्परेचर दिया है। ये सारी वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे, दिस इज द सिंपल एक्चुअल टेम्परेचर राइज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल, सो दिस इज द 40.65%। इज दैट क्लियर। ओके, नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको बोल रहा है क्वालिटी ऑफ स्टीम जो है, या ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट कर। तो वही सेम फार्मूला अप्लाई अपना किया है यहाँ पर। हीट एब्जॉर्ब बाय द स्टीम इज इक्वल टू हीट गिवन बाय द वाटर। So this is MS multiplied by HFG multiplied by MW CPW, this one. क्लियर। तो ये आसान है, इसमें मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें आप यहाँ पर कैलकुलेट करके x की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मास ऑफ एयर, इसी को हम लोग कैपेसिटी भी बोलते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, इसी टर्म को हम कैपेसिटी भी बोलते हैं। कैपेसिटी ऑफ जो पंप होती है जिसको आप एक्सट्रैक्ट करते हैं एयर को, उसकी कैपेसिटी भी यही होती है कि जितना मास वो हैंडल कर सकते हैं उसी को उसकी कैपेसिटी बोल देते हैं। तो यहाँ मास ऑफ एयर जैसे पहले कैलकुलेट किया था पर मीटर क्यूब ऑफ कंडेंसर प्रेशर, तो यहाँ पर भी वही कि एयर को आइडियल गैस मानिए, मास ऑफ एयर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर मल्टीप्लाइड बाई V डिवाइडेड बाई RT। सो आप पार्शियल प्रेशर आपको मालूम है, एयर का कैलकुलेट कर चुके हैं, वॉल्यूम आपने 1 लिया है, R की वैल्यू 0.287 होगी, एंड डेफिनेटली जो कंडेंसर का एवरेज टेम्परेचर, ये मीन टेम्परेचर है 40, उसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दिस वन इज 0.0366 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर, मास ऑफ एयर कैलकुलेट करना अगर आपको आ गया। अब इसके बाद आते हैं कि इसके फर्दर हमको क्या कैलकुलेट करना था। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको क्या कैलकुलेट करना था। हमने अंडर कूलिंग निकाल लिया, कंडेंसर इफिशिएंसी निकाल लिया, स्टेट ऑफ स्टीम निकाल लिया, द मास ऑफ एयर पर मीटर क्यूब ऑफ कंडेंसर वॉल्यूम निकाल लिया। अब निकालते हैं द मास ऑफ एयर पर किलोग्राम ऑफ अंडर कूलिंग अनकंडेंस्ड स्टीम। कितनी अनकंडेंस्ड स्टीम है उसके अगेंस्ट में आप उसकी मास निकालिए कि कितना अनकंडेंस्ड स्टीम रह गया। अब इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, देखिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड मीन टेम्परेचर है, उस मीन टेम्परेचर पर आपको क्या करना है, आप स्टीम टेबल पर जाइए और स्पेसिफिक वॉल्यूम देखिए। 19.52 आपको दिख गया, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। 19.52 आपको ये दिख गया, ठीक, 19.52 दिख गया। आपको मालूम है कि टोटल वॉल्यूम जो कंडेंसर का है इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम होगा, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू
मास ऑफ एयर मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर, ये चीज़ होगी। ये मैंने आपको जब डाल्टन का प्रिंसिपल बताया है तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ इस कॉन्सेप्ट को अगर यूज़ करते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को अगर यूज़ करिए तो मास ऑफ एयर इन 1 किलोग्राम ऑफ अनकंडेंस्ड स्टीम इज इक्वल टू मास ऑफ एयर इन 19.52 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर समझने में आपको? ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं? मास ऑफ एयर इन 1 किलोग्राम ऑफ अनकंडेंस्ड स्टीम इज इक्वल टू मास ऑफ एयर इन 19.52 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। क्लियर? ये बात समझ में आई? देखिए मैं आपको इसको एक बार फिर से बताता हूँ। सी दिस वन, जैसे मैंने आपसे कहा था, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडेंसर, दिस वन इज मास ऑफ स्टीम मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम। क्लियर? तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम आपको पता है, दिस वैल्यू। मास ऑफ स्टीम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ स्टीम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिस वन इज द टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मास ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम 19.52 आपको पता है। ठीक, तो आप यहाँ से ये जो टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? दिस इज द 1 डिवाइडेड बाय दिस वन, ये। तो आप इसको मास ऑफ स्टीम को अगर आप यहाँ पर ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप मास ऑफ स्टीम जो कैलकुलेशन है वो पर किलोग्राम बेसिस पे कैलकुलेट करना है, यानी अगर आप मास ऑफ एयर पर मीटर क्यूब आप निकाल रहे होते, पर मीटर क्यूब आप कंडेंसर प्रेशर, तो आप ये टेक्निक लगाते। लेकिन आपसे उसने पूछा है कि कितना अनकंडेंस्ड स्टीम का हुआ है, तो आप यहाँ पर सिंपल आप एक काम करेंगे, मास ऑफ स्टीम शुड बी इक्वल टू मास ऑफ एयर। किस वॉल्यूम के लिए? स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए। मास ऑफ एयर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके स्पेसिफिक वॉल्यूम से, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम से मल्टीप्लाई आपने किया तो इसके बाद ये आप कैलकुलेशन देखिए, दिस वन इज 3.286 ये था। यहाँ आपने आप क्या किया है, यहाँ पर आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम पुट कर दिया है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो यूनिट होता है, दिस वन इज मीटर क्यूब पर किलोग्राम। क्लियर? तो मीटर क्यूब पर किलोग्राम आप यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, दिस वैल्यू इज किलोग्राम। इज दैट क्लियर? तो यही चीज़ मैंने की है यहाँ पर। जो वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 रखा था, वो 1 की जगह पर मैंने क्या रखा है? 19.52 एंड रेस्ट थिंग्स आर सेम। तो दिस वैल्यू इज 0.714 किलोग्राम। ध्यान रखिएगा, अगर 0.714 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो मैंने ये तरीका बताया इस तरह से करेंगे। अदरवाइज पर मीटर क्यूब अगर नहीं कैलकुलेट कर रहे तो आप यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम पुट कर देंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसके बाद। इन अ सरफेस कंडेंसर ऑपरेटिंग विद स्टीम टर्बाइन एट, देखिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इन अ सरफेस कंडेंसर ऑपरेटिंग with steam turbine, the vacuum near inlet air pump is 69 centimeter of Hg. Barometer reading 76 centimeter of Hg. Temperature at inlet of vacuum pump is 30 degree centigrade. Air leakage rate is 60 किलोग्राम पर आवर। आपको कैपेसिटी बतानी है और डायमेंशंस बतानी है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको ध्यान से समझिएगा। एब्सोल्यूट प्रेशर एट इनलेट एयर पंप जैसे कैलकुलेट करते आए हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर, तो 76 माइनस 69, 7 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो 7 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 9.33 किलो पास्कल। 9.33 किलो पास्कल को आप फर्दर कन्वर्ट करेंगे, 9.33 सॉरी इसको फर्दर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? एयर का। तो एयर को निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पर टेम्परेचर एट इनलेट ऑफ द वैक्यूम पंप। अब देखिए कंडेंसर का आप अगर डायग्राम देखेंगे तो ये मान लिया कंडेंसर है, तो इसमें मान लिया ये सेक्शन है, यहाँ पर आपने एयर पंप लगाया, तो यहाँ पर जो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान रखिएगा आपके लिए सिस्टम ये है, पूरा कंडेंसर सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड
जब आप यहाँ पर कैलकुलेशन करें। हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए आपको कंडेंसर का टेम्परेचर यहाँ बता दे कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप कैलकुलेशन 60 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आपको यहाँ पर कैपेसिटी आप एयर पंप पूछा जा रहा है तो आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो 60 पे बेस नहीं करेंगे, क्योंकि एयर पंप जहाँ पर लगा है उसके नियर अबाउट जो टेम्परेचर है वही हमारा सिस्टम है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो सारा कैलकुलेशन 30 डिग्री सेंटीग्रेड बेस पे करेंगे। अब इस सेक्शन में कुछ स्टीम भी होगी, कुछ एयर भी होगी, तो हम उस स्टीम का पहले क्या निकालते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अगेंस्ट में पार्शियल प्रेशर। तो स्टीम टेबल पर कैलकुलेट कर लेंगे, दिस इज अ 4.246 किलो पास्कल, ये आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फर्दर आपको एयर का यहाँ से प्रेशर मिल जाएगा, टोटल प्रेशर आपको मालूम है, उससे पार्शियल प्रेशर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5.09 किलो पास्कल। अब आपको यहाँ पर कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि आप जो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं उसकी बात हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ 60 किलोग्राम एयर, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर रहे हैं वही आइडियल गैस एज्यूम करके आपको मालूम है दिस वन इज V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस वन इज V इज इक्वल टू MRT डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। ठीक, तो M 60 किलोग्राम पर आर की बेसिस पे कैलकुलेट किया है, आर की वैल्यू ये रख दी, आर ध्यान रखिएगा यूनिट का, और दिस वन इज टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखिएगा इसको हम लोग चूंकि कहाँ पर निकाल रहे हैं एयर पंप पर, तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर हमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड लिया। इज दैट क्लियर? तो आपकी जो वैल्यू आई है वॉल्यूम की, दिस इज नोन एज द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी कितनी हुई एयर पंप की 1025.1 मीटर क्यूब पर आवर इज अ कैपेसिटी। तो कैपेसिटी ऑफ एयर पंप मीटर क्यूब में इतनी आ गई। अब सेकेंड पार्ट इसी में कह रहा है कि आपको और निकालना है कि मास ऑफ वेपर एक्सट्रैक्टेड विद एयर, ठीक है, इन किलोग्राम पर आवर। जैसे मैंने कहा कि उस सेक्शन में कुछ स्टीम भी होगी, तो वो कितनी है, वॉल्यूम हैंडल्ड कितना है, दिस इज द π/4 d स्क्वायर। अच्छा, मैं इसका पहले दूसरा पार्ट आपको करके दिखा रहा हूँ। द डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एयर पंप सिलेंडर इफ इट रन्स एट 240 RPM एंड L/D रेशियो इज 1.5। L/D रेशियो का मतलब क्या होता है, ये मैंने थोड़ा सा बताया था आपको जब IC इंजन या आपको ऑटो साइकिल डीजल साइकिल के बारे में बताया था। N इज द RPM, L इज द स्ट्रोक लेंथ, D इज द बोर डायामीटर। क्लियर? रेसिप्रोकेटिंग टाइप का ही कंप्रेसर है यहाँ पर। तो वॉल्यूम हैंडल्ड कितना है 1025.1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर इंटू L इंटू N मल्टीप्लाइड बाई 60 क्यों किया, 60 आपने इसलिए किया क्योंकि आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, या सॉरी RPM है, तो जो RPM है उस RPM को आप RPS में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसलिए आपने इसको कैलकुलेट किया है। सो दिस वन इज 1025.1 π/4 d स्क्वायर L N की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको बोर का वैल्यू निकल आएगा, और बोर की वैल्यू निकलने पर L/D रेशियो पता है, इसलिए आपको L की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये बात समझ में आ गया आपको? अच्छा, ये चीज़ मैं आपको एक बार डायग्राम बना के समझा देता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप कैसे होते हैं, ये है रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसको आप बोलते हैं दिस वन इज द डायामीटर। क्लियर? और पिस्टन ये है आपका टॉप डेड सेंटर TDC, और ये है आपका बॉटम डेड सेंटर BDC। इसके डिफरेंस, इस दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ L। ठीक, तो जो एयर का वॉल्यूम हैंडल हो रहा है वो इसी वॉल्यूम के अंदर हैंडल हो रहा है, इसी को कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वन इज π/4 d स्क्वायर इंटू L। अब देखिए ये चीज क्या आ गई, ये आ गया आपका मीटर क्यूब। जस्ट अ मिनट, सॉरी, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, जस्ट अ मिनट। ये वॉल्यूम कितना हो गया, दिस वन इज π/4 d स्क्वायर इंटू L, दिस वन इज वॉल्यूम। ठीक, इसकी यूनिट क्या हो गई, दिस वन यूनिट इज मीटर क्यूब। क्लियर? आप वॉल्यूम की यूनिट देखिए मीटर क्यूब पर आर है, तो पर आर है, इसका मतलब है कि इसको भी पर आर में कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना होगा, रेट पर मिनट
क्लियर। आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्लियर। तो पर मिनट है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पर अगर n का मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर क्यूब पर मिनट में आ जाएगा, मीटर क्यूब पर मिनट में आ जाएगा। पर मिनट में आ गया तो एक मिनट में कितने आवर्स होते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने यहाँ पर अगर 60 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, ये जो मिनट था, दिस मिनट इज कन्वर्टेड इनटू अ आवर। क्लियर। अब आपकी यूनिट मीटर क्यूब पर आवर इधर हो गई, इधर भी मीटर क्यूब पर आर हो गई और इधर भी मीटर क्यूब पर आ गई। बात समझ में आ गया? तो आपने यहाँ से डी और एल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब मैं फर्दर वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ जो मास ऑफ वेपर एक्सट्रैक्टेड था। मास ऑफ वेपर एक्सट्रैक्टेड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा था पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, अगर टोटल वॉल्यूम आपको पता है, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम हैंडल आपको पता है, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द लॉ, दिस वैल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम मल्टीप्लाइड बाई specific volume of steam at where, at the 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। ये वैल्यू तो आप देखिए यहाँ पर टोटल वॉल्यूम आपको मालूम है, ठीक है। आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पेसिफिक वॉल्यूम स्टीम टेबल से कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस जगह पर कितना मास ऑफ वाटर वेपर भी एक्सट्रैक्ट होके जा रहा है, वो किलोग्राम पर आवर में वैल्यू कैलकुलेट हो गई। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस which I am considered in this lecture. I hope कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और फर्दर आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखेंगे तो और चीज़ें समझ में आएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।